Hello. Yeah, good evening, everyone. So, am I audible? Am I audible? Anyone reply? Yes, sir. Okay, thank you. Well, Yes, sir. okay. Okay, today is the continuation of the previous class, previous topic we are going on. We are talking about, yesterday we vastly discussed about the choice of materials in interior design. So, among lots of materials, especially we'll be discussing on laminates and veneers, and also the materials which are used in the kitchen modular kitchen cabinets. So today we have actually, there are few materials which we actually have to study in some much detail because they are very much prominently used in interior designing. For example, the veneers and laminates is vastly used in interior design, and any, whether in furniture, whether in wall paneling, whether in any bed finish, whether in any sofa finish, whether in dining table, whether even in the ceiling or in the ceiling, also in the flooring also. So there are few materials like laminates and veneers which are very much used, so we have to study in detail. And there is always an option among these two, the veneers and the laminates. So today in this class we will be studying in very much detail about the veneers first. Veneers we'll study in detail. Okay, so I have just shared the slides with you. I have prepared. So we will be talking about discussing in detail about the veneers. So before going to the definition, because many people might not be familiar with this word veneer. So ये क्या चीज है? यानी इंटीरियर मटेरियल तो है, लेकिन कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है? So veneer, before we study veneer, we should also understand whenever we have to give a finished look to a furniture which is made up of wood, यानी लकड़ी का कोई भी चीज बना, बेड हो, पैनलिंग हो, वार्डरोब हो. So if we want to give some different types of shades, different types of finish, different types of gloss finish or matte finish, whatever, यानी हमें अगर कुछ अलग, क्योंकि wood is common, जो भी furniture, the whatever we make the furnitures out of, maybe the bed, maybe the wardrobe, maybe the shelves, maybe the cabinets, maybe the wall paneling. So use of the plyboard, use of the plywood, use of the teak wood, हम लोग लकड़ी से जो फर्नीचर बनाते हैं, उसके बाद उसमें क्योंकि लकड़ी का जो ओरिजिनल यानी कलर है या टेक्सचर वो तो कॉमन है. So why veneer or such type of materials are we use? Because if we want to give some new design, new texture, new color. So actually veneer is a type of a manufactured engineered wood. It is natural in form. So it is in a sliced in thin sheet of material, यानी बहुत पतला लकड़ी के log को, यानी कुछ there are some trees like teak or sapele or rose heart, this type of trees, the log we cut the into thin slices. It is in natural form. So veneer is a type of finish which we can often give to the outer finish over the particle board, over the wood or timber or over the plyboard. यानी कोई भी चीज हम लोग लकड़ी से जो बनाते हैं, प्लाईबोर्ड से हो, यानी टीक वुड से हो, या पार्टिकल बोर्ड से हो, या एमडीएफ से हो. सो द अल्टीमेट फिनिश वी गिव, जो जिस चीज से हम उसको पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं या नेलिंग करते हैं, दैट टाइप ऑफ फिनिश इज विनियर. So veneer is always in natural form. So it is a type of manufactured board. It is a thin sheet of material, a layer of wood and superior value of excellent grain. So these are some definitions I have just note down. So veneers are used in our cabinets, in our furniture, also in flooring, also in ceiling. So as you can go through the text also. The frame and shelves of the units are made of particle board. यानी framing जो, ऐसा नहीं कि veneer से हम लोग कोई फर्नीचर नहीं बनाते. We made the furnitures in particle board or in MDF or in plyboard, और उसका finish हम लोग veneer से करते हैं. So veneer is a type of finishing material. Now before also we study about veneer, we should also understand few terms very important, which क्योंकि उसके ऊपर ही ये veneer paste किया जाता है या needling किया जाता है. These are the furnitures हम जिससे बनाते हैं, furniture यानी वो cabinet हो गया, wardrobe हो गया, bed हो गया, या wall paneling हो गया.
there can be certain different types of materials we can use to prepare this type of furniture. These are MDF board, particle board, and plywood. So we just go to the definition. MDF. What is MDF board? MDF is the short form of medium density fiber board, जो एक बिल्डिंग और DI शीट मटेरियल जो DI शीट होता है उससे बनाया जाता है मोल्डिंग के लिए. So MDF is primarily used for indoor applications. Indoor के लिए होता है. So you can also go to the images adjacent to the right side. So MDF boards are the medium density fiber board. It is artificially made. And second thing is the particle board. Particle board, you can also see the images on the right side of the text. You can see particle board. So particle board is also made by compressing wood chips and glue. And ये लकड़ी का जो powder, when we slice the log of a tree, जो sawing के time जो powder निकलता है, जो बारीक powder जैसा होता है, उसको compress करके glue से board बनाया जाता है. So particle board is made of compressing wood chips with glue. Now third one is the plywood. Plywood is very common. Plywood जो हम लोग कहते हैं plywood. So plywood are made up of plies. यानी लकड़ी को जब हम लोग slice करते हैं, actually what happens if you go to the detail, whenever a tree is cut, जो हम लोग पेड़ को काटते हैं, जैसे teak हो गया या sapling हो गया या rose heart हो गई, इस तरह की tree को काटने पे अलग-अलग उसका जो trunk होता है, trunk का अलग-अलग layer होता है और अलग-अलग ये layer का जो लकड़ी निकलता है, the type of wood we get are in various forms. So plywood is the कॉम्बिनेशन, यानी बहुत सारे स्लाइस जो प्लाइस बोलते हैं, स्लाइस करके जो शीट्स को पेस्टिंग करके मजबूत करके किसी थिकनेस में निकाला जाता है. सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन. MDF बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और प्लाई बोर्ड. एंड दीज आर द मेन मटेरियल ऑफ द फ्रेम, यानी जो फर्नीचर हम लोग बनाते हैं लकड़ी का, उसका मेन मटेरियल ये है. अब इसके ऊपर हम लोग फिनिश क्या देंगे, इधर में भी विनियर और इधर में भी लैमिनेट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स. Okay, simple. If you go to the process of manufacturing the veneer, जो मैंने बताया, veneer is a natural, actually it's a natural form. ये original wood को लकड़ी को यानी original log को काट के slice करके बनाया जाता है. So if you go to the simple process, one is process involves the slicing and the peeling. यानी जो tree का जो log होता है उसको slice किया जाता है, उसके बाद peeling यानी पतले-पतले यानी thin material में उसको slice किया जाता है. Second one is the grading and joining और थर्ड वन इज द प्रेसिंग. मैं इस डेफिनेशन को एक इमेज के थ्रू बताना चाहूंगा. दिस इज द मशीन और दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. आप इस इमेज में देख सकते हो हाउ विनियर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल ट्री और लॉग. यानी नेचुरल ट्री से, नेचुरल पेड़ का जो लॉग होता है, ट्रंक होता है, उससे इस तरह के मशीन से उसको पीलिंग यानी स्लाइसिंग किया जाता है. उसका जो आउटर जो उसका पेरिफेरी होता है उसको स्लाइसिंग किया जाता है इस तरह के मशीन से. So there can be different types of process of cutting. The simple example, कुछ तरीका है. There are few types like rotary cut. यानी काटने का तरीका, peeling करने का जो natural log है उसको जो peeling करते हैं हम लोग, उसका जो छिलका निकालते हैं, उसका अलग-अलग. There can be different types of process like rotary cut, like quarter slicing or lengthwise slicing and all. Now in this image you can see above image. There are two images on your screen right now. Above image is veneer in raw form, यानी नेचुरल लॉग को स्लाइस करके पील ऑफ करके उसका जो छिलका है उसको निकाला गया इन टर्म्स ऑफ सम फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ सम शीट. वो नेचुरल यानी बिल्कुल रॉ मटेरियल में है. उसको बाद में अगर हम लोग उसको प्रोसेसिंग करें इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मटेरियल्स, यानी कुछ उसको टेक्सचर देना हो, उसमें कलर पिगमेंट मिक्स करना हो, उसके बाद जो निकल के आता है you can see the below image. यानी अभी दो इमेज जो आपके ऊपर है, आपके स्क्रीन पे है. The above image is the raw, ओरिजिनल जो विनियर निकाला जाता है from the log of the tree, and the below image is the after processing. प्रोसेसिंग करने के बाद उस पे टेक्सचर, ग्रेन्स, कलर पिगमेंट्स वगैरह डालने के बाद या कुछ फाइन यानी लैमिनेशंस भी होता है कुछ में. Now let's talk about the characteristics of veneers. विनियर्स का, विनियर जो होता है ओरिजिनल नेचुरल वुड से बनता है, स्लाइस होके आता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी वजह से why we prefer to use veneers, because it is recyclable and renewable. Obviously any natural available material will obviously be recyclable and renewable. यानी वो नेचर को यानी नेचर फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है. So it is always recyclable and renewable. Second one is the sustainability. Obviously any natural, any material available in nature, if you can use it, it is always sustainable to nature.
Third one is the toxicity. So it is always non-toxic. Veneer store carbon and while maximize the use of harvested wood. यानी ये जो है, अगर if we talk about in chemical chemistry, ये नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज नहीं होता. ऑब्वियसली इट इज नॉट हार्मफुल टू आवर हेल्थ, नॉट हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट, सो इट इज नॉन टॉक्सिक. ना प्रॉपर्टीज ऑफ विनियर्स, इफ यू गो फॉर प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग विनियर को कैसे पहचानेंगे, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज विनियर्स. सो वन थिंग इज द अपीयरेंस से भी you can go whenever you see any finishing material in veneer, you can also recognize by its appearance, by its permanence. Color permanence का मतलब है it cannot, कभी भी ऐसा नहीं होता, it never happens that a sheet of veneer sheet एक ही यूनिफॉर्म कलर का हो, बिकॉज इट कांट बी, बिकॉज इट इज नॉट आर्टिफिशियली मेड, इट इज नेचुरली अवेलेबल, जिसको हम लोग स्लाइस करके बनाते हैं. सो इट इज कलर परमियनेंस, थोड़ा सा कलर का शेड्स अलग अलग होने लगता है, नेचुरल फील देने लगता है. Third one is a figure. Figure means here, it doesn't mean, it means the texture, the periphery of the sheets. Sound insulation, एक proper अच्छा sound insulation. If we use veneers in a room, obviously it absorbs the sound. Sound के लिए ये बहुत अच्छा material होता है. If we want more privacy in a resort room, suppose in resorts, often we use veneers because in the room, because if we need privacy of sound, so veneers can be a good selection because it also absorbs sound. क्योंकि नेचुरल है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, नेचुरल है, इसमें पोर्स होता है, सो इट इज ऑलवेज गुड फॉर साउंड इंसुलेशन. फोर्थ वन इज अ फायर सेफ्टी. या देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन हियर, फायर सेफ्टी क्यों है? टू सम एक्सटेंट, अगर इफ यू कंपेयर विद मेनी मटेरियल्स, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, हाँ, इफ यू से दैट लकड़ी कैसे फायर सेफ्टी हो सकता है, या इट कांट बी, बट only if you compare veneer with many other synthetic or artificial materials like Korean sheet, like laminates, or use of resins or plastics, then it is fair safety. So don't get confused. If it is a natural wood, then how can be fire safety? But if we compare with other materials like laminates is a artificial material which is used, which is prepared by chemicals of resins and plastic and all. या कोरियन शीट हो गया, तो दूसरे मटेरियल से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, देन इट इज फायर सेफ्टी फॉर द रेस्ट ऑफ द अदर मटेरियल्स. थर्ड वन इज अ मॉइस्चर. another very important thing, moisture, it is actually very good for consuming moisture because नेचुरल, जैसे नेचुरल एक ट्री, एक लॉग जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और अपने में वो सुखा लेता है. सो विनियर इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी दैट इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कीप्स इट ड्राई. And another one is the electrical conductivity. It is also a good, again it is compared, if you compare with the other finishing materials, then it is a good conductor, electrical conductivity in a conductor. Now types of veneer we get as per the type of log or tree. Any natural available जो trees होता है, उनमें से कौन कौन सा tree है जिससे हमें जिसके log से हमें veneer मिलता है. So these trees can be teak, the most common, oak, maple, sandal, beech, ironwood, sapele, roseherd, or patternwood. These are the few types of trees from which the veneers can be extracted. Now, if we come to talk about the available sheets, if we wish to use veneers in our finishings, in our interiors, then available size are obviously commercial of sizes are 8 feet by 4 feet, a standard size. And it can be sometimes on purchase order or whatever, it can come also in 10 by 4 feet or 12 by 4 feet also, but most commonly it is available in the market in the form of sheets, and its size is 8 by 4. Now thickness, if we talk about the raw, any original raw of the material, then it comes in various shapes, sizes like 0.8 to 0.8 to 3 mm. But commercially, while we have to use it in our interiors, the commercially available 8 by 4 sheets come in the thickness of 0.5 mm, 1 mm, or 2 mm. These are the thickness we have used. Now, if you still want to know what are why are the thickness vary also, or what can be done, the veneers actually can be of two or many types, but actually broadly speaking, we can go for two types of veneers. One which is already processed, already finished by the company, we need not to do anything. यानी उस पे विनियर लगाने के बाद उस पे कोई पॉलिश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उस कंपनी की तरफ से बन के आता है और उसमें टैग लगा रहता है ऑलरेडी कि उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें उसको पेस्टिंग करना है या नेलिंग करके लगा देना है, यानी फिनिश, और कुछ फिनिश नहीं करना है.
लेकिन मैक्सिमम विनियर्स जो आता है दे आर आफ्टर दिस एप्लीकेशन देयर वी मे नीड पॉलिश, पीयू पॉलिश या लेमिनेशन, कुछ भी हम लोग जो करते हैं। सो देयर कैन बी टू टाइप्स, एक रेडीमेड कंपनी की तरफ से पॉलिश या वो फ्री प्रोसेस होके आता है, और एक जिसमें हम लोग को विनियर लगाने के बाद वी हैव टू गो फॉर पॉलिश और sorry PU polish or lamination or whatever. So these sizes 0.5 mm, 1 mm, 2 mm actually if we want some veneers which have the maximum texture, natural log यानी लकड़ी का जो log grains का जो shape होता है लकड़ी का, then we obviously have to go for some rough finishes जो उसकी उस तरह की sheets की thickness ज्यादा हो जाती है। It comes around 2 mm or 1 mm. That is the difference actually. ओके, दीज आर सम ऑफ द मार्केट सर्वे, यानी मार्केट में जो अवेलेबल हमें जो मिलता है विनियर्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें, इफ यू गो अबाउट द प्राइसिंग एज पर द टाइप ऑफ, इट वेराइज एज पर द टाइप ऑफ वुड इट इज, यानी किस ट्री से, किस ट्री का लॉग से वो विनियर यानी प्रोसेस हुआ है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ रेट्स लाइक टीक वुड, ओक, बीच वुड, मैपल, आयरन वुड, सेपेलियन ऑल। तो कुछ रेट्स मैंने दे दिया है, एवरेज एक रेट है। Acha. Now, if you come to the finishing part, after pasting by Fevicol or adhesive, or after pasting via nailing, उसमें फिर finish होना होता है, polishes for veneers. So there can be three types of finishes in veneers. One is a matte finish. Matte is a type of drilling, type of processing where we try to keep the surface rough, more and more rough, to give more natural look. यानी मैट फिनिश ऑब्वियसली एक रफ फिनिश होता है। सो आफ्टर अप्लाइंग द पेस्टिंग द शीट्स वी ट्राई टू गिव सम रफ फिनिश, ए मैट टाइप फिनिश, टू मेक इट मोर नेचुरल इन फॉर्म। इसका जो ओरिजिनल ग्रेन्स होता है, ओरिजिनल जो टेक्सचर होता है उसको उसको हम लोग और यानी इसको क्लीनिंग करके उसको हम लोग मैट में यानी मैट फिनिश में बदलते हैं। सो देयर कैन बी वन टाइप ऑफ फिनिश दैट इज मैट। एंड द मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन यानी फिनिशेस ऑफ विनियर्स होता है, दैट इज पीयू पॉलिश। पीयू पॉलिश जो हम लोग बोलते हैं, पीयू इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलीयूरेथीन, एक केमिकल होता है। उस केमिकल को सबसे पहले फर्नीचर बनाया, वी प्रिपेयर्ड द फर्नीचर, वार्डरोब, कैबिनेट्स, शेल्व्स या इवन स्टडी टेबल और डाइनिंग टेबल और बेड। सबसे पहले वी प्रिपेयर द फर्नीचर with the any material, maybe plywood, maybe thick wood, maybe particle board, maybe MDF। सबसे पहले फर्नीचर बनाने के बाद, फ्रेमिंग करने के बाद, उसके बाद हम लोग जब डिसाइड करते हैं हमें विनियर लगाना है, तो वी गो टू द मार्केट, वी सर्वे की किस तरह का डिजाइन, टेक्सचर, कलर हमें विनियर पसंद आया, तो विनियर हम लोगों ने खरीद लिया। विनियर 8x4 का शीट के अवेलेबल साइज में आता है। देन हमने उस पर लगा दिया किसी भी फर्नीचर में हमें जैसा जहाँ लगाना है। उसके बाद वी ऑल्सो have to go for the PU polish। अगर हम लोग जाते हैं कि PU polish चाहिए, PU polish is the type of finish which we use this polyurethane, a chemical, या you can so call it oil। एक ऑयल होता है जिसका भी परसेंटेज का रेशियो होता है कि आपको कितना परसेंट करना है, उसका ग्लॉसीनेस कितना बढ़ाना है, उसका लेमिनेशन या उसका ग्लॉसीनेस यानी उसकी चमक कितना आपको चाहिए। 100% PU polish चाहिए, 80% चाहिए, 70% चाहिए, 50% चाहिए। तो इट डिपेंड्स, जितना अलग अलग टाइप का पॉलिश करेंगे अलग अलग लुक देने लगता है। तो दिस इज टाइप अनदर टाइप ऑफ फिनिशेस कॉल्ड PU पॉलिश, वी कॉल इट वेरी कॉमन। एंड द लास्ट वन इज लैमिनेशन। लैमिनेशन इज एक्चुअली शीट के ऊपर ऐसा कुछ केमिकल लगा के, यानी हम लोग उसको लैमिनेट, जैसे हम लोग नॉर्मली एक अपने सर्टिफिकेट्स को या किसी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग लैमिनेशन करते हैं, यूज ऑफ प्लास्टिक, थीन प्लास्टिक फिल्म। तो उसी तरह का विनियर्स के ऊपर, नेचुरल है विनियर है, विनियर्स के ऊपर भी हम लोग इस तरह के थीन प्लास्टिक फिल्म लगा के हीटिंग से उसको लैमिनेट कर सकते हैं। बट नॉर्मली वी डोंट प्रिफर लैमिनेशन until and unless it is used in somewhere where we actually need it। Suppose you want to have veneer finished also in the dining table। डाइनिंग टेबल ऐसा एक फर्नीचर है, वहां पे ऑब्वियसली देयर विल बी यूज ऑफ वाटर, पानी गिरेगा। सो बिफोर दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू अवॉइड वाटर। यानी एक होता है मॉइस्चर, कुछ एक्सटेंट तक ठीक है, but we have to avoid direct water to the veneer because it's natural wood। so डाइनिंग टेबल वगैरह में अगर आपको यूज करना है विनियर और आप चाहते हो कि आपको यूज करना ही है, then obviously it is suggested that you have to go for lamination। क्योंकि lamination से क्या होगा,
ऑब्वियसली उसके ऊपर अलग से एक प्लास्टिक फिल्म एक आप लगा दोगे, उससे क्या होगा, आपका ओरिजिनल जो विनियर है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा पानी से, मॉइस्चर से। So normally, but these are the three types of finishes: matte, PU polish, or lamination. But most common is the PU polish. Always remember, PU polish का percentage होता है. Use of oil to give it more and more whatever percentage we need the glossiness. यानी उसका चमक लाना, glossy करना. उसका percentage भी अलग 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 होता है, अलग अलग looks देता है. जैसे भी veneer को हम लोग करते हैं. Anyway, और veneers से stick by adhesives like फेविकॉल. यानी veneers को हमेशा किसी adhesive से सबसे पहले चिपकाया जाता है, मे बी फेविकॉल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिश भी हम लोग ला सकते हैं, स्मोकी, वेदरिंग एक्सेट्रा विनियर्स में, जैसे मैंने लिखा। ब्लैक रेसिन इज आल्सो यूज्ड, यानी अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक या नेचुरल कुछ वो लाना है, फिनिश लाना है, टेक्सचर लाना है, कलर को थोड़ा थोड़ा फेडिंग करना है, देन यूज ऑफ ब्लैक रेसिन इज समटाइम्स यूज्ड टू गिव इट ग्रेइश टोन। अगर ग्रेइश टोन की तरह कुछ चाहिए तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स कैन आल्सो बी यूज्ड विद द विनियर्स। Another one is a dyed veneers are also available. Dyed and dye karna. Now, most commonly available veneer brands we have in our market like Greenply, natural veneer, Greenply, Century, और कुछ local market भी होते हैं. So these are some I have listed of average pricing. Pricing can be, अगर आप per piece की बात करें, board की बात करें, around 4/8 का जो size आता है, veneer sheets can be around maximum 2000 to 3000 or whatever. So एवरेज जो साइज होता है 2000-3000 के अंदर ही आता है। नाउ इफ वी वांट टू आल्सो नो द टेक्निक ऑफ पेस्टिंग, इस इमेज में आप देख सकते हो कि क्या टेक्निक है, हम लोग विनियर्स को कैसे उस पे लगाते हैं, फर्नीचर पे लगाते हैं। सो अप्लाइंग विनियर एंश्योर ग्राउंड वर्क इज फ्लैट एंड स्ट्रेट, यानी जो फर्नीचर है आपका, वार्डरोब है, कैबिनेट है, या जहाँ पे आपको विनियर लगाना है, सबसे पहले वो सरफेस जितना हो सके क्लीन हो, साफ हो, क्योंकि आप उस पे पेस्टिंग करने जा रहे हो, और स्मूथ हो, यानी इरेगुलर फॉर्म ना हो, यानी इरेगुलर शेप ना हो, क्योंकि वो अगर इफ देयर इज अ गैप ऑफ एयर अगर आपका अंदर गैप हो गया तो ऑब्वियसली वो उखड़ने की कोशिश करेगा। तो सरफेस हैज टू बी वेरी मच क्लीन, स्मूथ एंड यानी प्लेन, यानी जितना हो सके। सेकंड थिंग इज दैट फील एनी डिफेक्ट्स एंड सेंड, यानी जैसे विनियर एक नेचुरल फिनिश है, तो विनियर का पेस्टिंग, विनियर का जो बैक साइड होता है, यानी फर्नीचर जिस पे आप लगाओगे उसको आप क्लीन रखोगे, स्मूथ रखोगे, और विनियर शीट का जो बैक साइड है उस पे आप सैंडिंग करोगे, यानी सैंड पेपर से उसको आप वो करोगे, यानी इसको घिसोगे। व्हाई? बिकॉज विनियर इज a natural material and veneer has some grains, has always some bit of grains and some bit of roughness in it, being a natural wood. तो उसको हम लोग अगर दोनों सरफेस, यानी विनियर का बैक साइड का सरफेस भी स्मूथ हो गया और आपका अगर फर्नीचर का सरफेस भी स्मूथ हो जाता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग हो जाता है। सो टेक्निक इज दैट आपका फर्नीचर का सरफेस हमेशा जितना हो सके क्लीन हो, स्मूथ हो, लेकिन उसका विनियर शीट का जो बैक साइड है वो आपको सैंड पेपर से सैंडिंग करना होता है। उसके बाद प्रेसिंग होता है, सील द वुड विद ए थिन फिल्म ऑफ एडिसिव, यानी बहुत थिन फिल्म ऑफ एडिसिव से, फेविकॉल से उसको चिपकाया जाता है। उसके बाद प्रेसिंग होता है, यानी किसी दूसरे चीज से इसको पेस्ट यानी पेस्ट किया जाता है ताकि वो सूख जाए प्रॉपर्ली, उसका यानी वो तैयार हो जाए। सो दीज आर सम टेक्निक्स हाउ वी अप्लाई द शीट्स टू द फर्नीचर। नाउ बिफोर गोइंग टू मच डिटेल, आपको कुछ इमेजेस शेयर करता हूँ। विनियर से क्या लुक आता है, हाउ वी फील विनियर यूज करने के बाद। So veneer, इस इमेज में देखिए आप, there is a use of veneer finish in bedroom. Veneer finish in bedroom in the wardrobes, in the back wall. बेड के पीछे जो दोनों तरफ, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वॉल पैनलिंग किया है, देयर इज अ फिनिश ऑफ विनियर्स, व्हाटएवर चॉइस यू हैव, आपको जो भी टेक्सचर कलर पसंद आता है। So veneers are broadly used in interiors of home, and it is often used in the master bedrooms, also in the bed back paneling or in the wardrobes. So these are the use of veneers. And also you can give some additional designs in veneers by putting some what we call grooves. So अगर आप देख सकते हो मेरा माउस, I'm moving my mouse. These are the grooves. This can also be an alternate design. यानी एक होता है कि विदाउट ग्रूव पूरा एक ही प्लेन आपने लगा दिया, दूसरा हो सकता है एक एक शीट के बीच में इस तरह की लाइनिंग आ जाए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइनिंग आ जाए, जिसको हम लोग ग्रूव्स बोलते हैं।
सो इस तरह के इमेज में राइट हैंड साइड में आप देखिए, veneers can also be combined design with laminates also, यानी एक ही वार्डरोब में कुछ पार्ट आप विनियर लगा सकते हो, थोड़ा पार्ट आप वो भी यानी लैमिनेट भी लगा सकते हो, सामने का लगा सकते हो, या दूसरा कोई शीट भी लगा सकते हो. This can be a combination of 2-3 materials also, ताकि if you want to give some different types of design, you use a combination of 2 colors or 2-3 colors. Now this is another image where veneers is used in office में conference room है, conference hall है, use of veneers in the offices आप देख सकते हो, the paneling, the wall paneling part, even the ceiling part is also given to some extent the use of veneers. So but before I should also let you know often we avoid using veneers in most of the offices because veneers is always, obviously, as I told you, is very costly. Second thing, it is have to be maintained very properly because it is natural. So क्या होता है ऑफिस में, कमर्शियल एरियाज में, यानी पब्लिक प्लेसेस में द यूज ऑफ रफ यूज होता है, जैसे स्क्रैचेस आने का वो खतरा होता है. सो मोस्टली वी प्रिफर, more or less we prefer using of veneers in at our home only. वेल अगर हम लोग डिजाइन सिलेक्शन की बात करें, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. कुछ मेथड्स है. शीट जो अगर अवेलेबल शीट जो हमें मिलता है, जैसे मैंने बताया, इट इज ओरिजिनल वुड, ओरिजिनल ग्रेन्स, वुड का, लकड़ी का जो बीच बीच का जो ग्रेन्स होता है, वो डिजाइन होता है, उस पैटर्न का फॉलो करने का बहुत सारा नहीं वो होता है. व्हेन यू गो फॉर सिलेक्शन ऑफ ए विनियर इन यानी शोरूम एंड ऑल, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कौन सा विनियर यूज कर रहे हो, क्योंकि उस विनियर को एक्चुअल में वार्डरोब में पैनलिंग लगाने के बाद अगर उसका कंटिन्यूटी ब्रेक होगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बहुत खराब हो जाएगा. So there are different types of applying such type of woods, यानी sorry veneers. तो इस तरह के डिजाइन जो पैटर्न्स आता है, ग्रेन्स का जो पैटर्न आता है, उसका रिपीटेशन भी होता है, मोनोटोनी होता है, बहुत तरह का अलग अलग तरीका है. तो अगर हम लोग सिर्फ नाम पे जाए, एक होता है बुक मैचिंग. दिस इज बुक मैचिंग. दिस इज अनदर टाइप ऑफ बुक एंड टर्न मैचिंग. नंबर 3 इज स्लिप मैचिंग. नंबर 4 रिवर्स स्लिप मैचिंग, रनिंग मैचिंग. दिस आर डिफरेंट टाइप्स. यानी सिंपली स्पीकिंग, जो भी आप विनियर यूज करोगे, यू हैव टू बी केयरफुल कि विनियर का कोई लीनियर रेगुलरिटी तो नहीं है, पैटर्न तो नहीं है, यानी मिरर्ड तो नहीं है या कंटिन्यू तो नहीं है. अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया तो आपका डिजाइन बेकार हो जाएगा. बस इतना आपको याद रखना है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजिंग रिपीटेशन ऑफ द शीट्स. एक हो गया ग्रेन्स से, यानी जो एक शीट है, शीट के अंदर जो ग्रेन बना हुआ है, उस ग्रेन के रिपीटेशन को लेके. दूसरा एक है कि पैनल मैचिंग मेथड्स, यानी एक शीट से दूसरे शीट पे, जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक शीट से दूसरी शीट पे कोई यानी वो नहीं है, रिलेशन नहीं है. एक शीट अलग अलग शीट लगा सकते हो, लेकिन फिर इसमें ये भी देखना है कि शीट का रेगुलरिटी, शीट का पैटर्न ऐसा हो ताकि वो एक जैसा भी लगे. तो देयर आर अनदर वे, जिसको सेंटर बैलेंस एंड रनिंग, रनिंग में हो, बैलेंस क्या करना हो. तो ये जो डिजाइन मैं अभी बता रहा हूँ, ये ग्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि विनियर्स में हमेशा ग्रेन्स मिलेगा, बिकॉज नेचुरल वुड है, मैंने बार बार बोला, लॉग से स्लाइस करके निकाला जाता है, तो उसमें ग्रेन्स होता है. उस ग्रेन्स के बहुत अलग अलग पैटर्न हो सकता है, उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना होता है जब हमें उसको यूज करना होगा. ओके, अगर हम लोग और डीपली इसको पढ़े, विनियर्स एज पर अगर अवेलेबल हमने बता दिया, एज पर द वुड जो ट्री के हिसाब से मिलता है, एज पर अगर कमर्शियल वे में अगर हम लोग डिटेल में जाए, तो देयर कैन बी नेचुरल विनियर, फाइन लाइन विनियर, रोटरी विनियर, स्लाइस विनियर. मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ. सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ विनियर्स. अगर इफ यू वांट टू, जैसे आपका कोई इंटीरियर आपको करना है, बेडरूम का डिजाइन करना है, बेड का या वार्डरोब का, पैनलिंग का, देखो चॉइस इज योर्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. So there can be different types of shades, different types of texture, different types of grains, different types of colors. So I have just listed out few types there: natural veneer, fine line veneer, rotary cut veneer, slice veneer, soft stone veneer, roll veneer, design decorative veneer, multi-layer veneer, 3D veneer is another unique type 3D. अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारा नेचुरली मटेरियल सारा नेचुरली अवेलेबल है, लेकिन इसमें कंपोजिशन को थोड़ा आर्टिफिशियली मैनमेडली यानी चेंज किया गया. जैसे 3D विनियर, ऑब्वियसली दिस इज नॉट नेचुरली एग्जिस्टिंग, मटेरियल एग्जिस्ट यानी नेचुरली अवेलेबल है, उसको 3D फॉर्म में उसको प्रोसेस किया गया, ताकि बिकॉज एवरीवन नीड्स सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी डिजाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू डिजाइन. हर किसी को नया डिजाइन चाहिए, किसी को 3D टाइप का कोई इफेक्ट भी चाहिए, लेकिन विनियर ही चाहिए. विनियर इधर नेचुरल है,
तो इसलिए कुछ विनियर्स को ऐसे भी बनाया जाता है, यानी ओरिजिनल उसका मटेरियल ओरिजिनल विनियर ही होता है, नेचुरली अवेलेबल ही होता है, लेकिन उसको दोबारा से रीप्रोसेसिंग करके रीअरेंज करके उसका इफेक्ट लाया जाता है। Okay, next class we'll be studying about the laminates. So today I think we have another 5 minutes only. So next class में हम लोग laminates के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ laminates और veneers का कुछ differences बता देता हूँ, ताकि आपको जैसे when you have to go to selection, कि आपको जैसे अपने home interior के लिए when you are going to propose veneer और laminates आपको कुछ फायदा हो। देखो आजकल आजकल लैमिनेट्स भी ऐसा आने लगा है जो आपको 90% विनियर की तरह लुक देगा, टेक्सचर देगा, फील देगा, एवरीथिंग, बट वो आर्टिफिशियल है। बस मेन डिफरेंस अगर आप मैंने पहले भी बताया था, मेन डिफरेंस इज द बजट। अराउंड विनियर कॉस्ट अराउंड 8 to 10 times more than laminates, इंक्लूडिंग इस पीयू पॉलिश एंड एवरीथिंग, यानी पॉलिश लेने के बाद करने के बाद उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। द चॉइस इज अप टू यू। बस फर्क ये है कि मेन फर्क तो यही है कि विनियर्स आर नेचुरली मेड, यानी नेचुरल मटेरियल होता है, और लैमिनेट जो होता है वो आर्टिफिशियली है, आर्टिफिशियल रेसिन से बनाया जाता है। तो मेन डिफरेंस अगर हम लोग जाए मेक में, विनियर्स आर मेड बाय नेचुरल, लैमिनेट्स आर मेड बाय मैन। Material, a veneer is very thin slice of wood. Laminate is an artificial material made from decorative papers and plastic resins. How it is made, processing है क्या? अवेलेबिलिटी दोनों अवेलेबल है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में मेन एक फर्क है। इंस्टॉलेशन में ऑब्वियसली लैमिनेट्स में एक एडवांटेज ये भी है, लैमिनेट्स नेवर नीड एनी सॉर्ट ऑफ प्यू पॉलिश और लैमिनेशन, नथिंग। लैमिनेट्स रेडीमेड आता है, उसको बस चिपकाना है, पेस्टिंग करना है, उसके ऊपर कुछ नहीं करना होता है। लेकिन विनियर में 90% विनियर्स में हमें उसके बाद उसमें पॉलिश करना होता है या लैमिनेशन करना होता है। ड्यूरेबिलिटी, अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ऑब्वियसली नेचुरली मेड जो भी जैसे विनियर इज ए नेचुरल अवेलेबल मटेरियल, सो उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। लैमिनेट्स आर्टिफिशियल है, तो ड्यूरेबिलिटी कम है। मेंटेनेंस अगर वाइज जाए, मेंटेनेंस आपका ऑब्वियसली विनियर में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एज यूजुअल नेचुरल अवेलेबल है। लेमिनेट में उतना ज्यादा ड्यूरेबिलिटी इसलिए नहीं होता, उसमें स्क्रैच हो जाता है, या उसका आर्टिफिशियल मेड है, उसका एक्सटर्नल टेम्परेचर से, एक्सटर्नल मॉइस्चर से भी उसका फर्क पड़ता है। अगर लाइफ की बात करें, ऑब्वियसली विनियर का ही प्रॉपर्टी अच्छा होता है लाइफ में, उसका ड्यूरेबिलिटी। कॉस्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया, कॉस्टिंग लेमिनेट्स आर चीप एंड विनियर्स आर वेरी कॉस्टली। थिकनेस की बात करें, थिकनेस कैन बी द थिकनेस अवेलेबल इन द विनियर इज 0.4 to 5 mm तक मिल जाता है, whereas laminates अवेलेबल इन 0.6 mm to 12 mm। साइज दोनों का स्टैंडर्ड 8x4 साइज में ही आता है, लेमिनेट्स और विनियर्स। इको फ्रेंडली की बात करें, ऑब्वियसली लैमिनेट्स इज आर्टिफिशियली मैन मेड यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड रेसिन्स, वो इको फ्रेंडली कभी नहीं हो सकता। विनियर्स और ऑब्वियसली इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। एस्थेटिक्स की बात करें, दोनों में आपको लुक एंड फील दूर से अच्छा लगेगा, लेकिन व्हेन यू टच इट तब आपको पता चलेगा दिस इज लैमिनेट, दिस इज विनियर। तो अगर एस्थेटिक की बात करें, ऑब्वियसली विनियर विल ऑलवेज गिव यू मोर एस्थेटिक फील, बिकॉज आपको नेचुरल फील देगा, ऑर्गेनिक फील देगा, नेचुरल वुड का फील देगा। लैमिनेट्स भी देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डीपली, अगर अच्छे से आपको अगर पहचान है, आप उसको टच करोगे तो सब पता चलता है कि ये लैमिनेट है, विनियर नहीं है। वैरायटी खैर दोनों का बहुत ज्यादा है। रिपॉलिशिंग, हाँ, देयर इज अनदर पॉइंट, रिपॉलिशिंग। हाँ, विनियर में कभी कभी रिपॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया, विनियर को लगाने के बाद हम लोग पहले पॉलिश करते हैं, हो सकता है 5 years 10 years के बाद उसको दोबारा रिपॉलिश करना पड़े, फिर ड्यू टू द एक्सटर्नल मॉइस्चर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल जो भी हीट एंड लाइट, उसकी वजह से कभी कभी कलर थोड़ा सा ओरिजिनल विनियर का कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाहर जो हम लोग पीयू पॉलिश करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो रिपॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है। लैमिनेट्स का लेकिन कोई रिपॉलिश का कोई चक्कर ही नहीं है, लैमिनेट्स रेडीमेड आता है, लगा देते हैं। लेकिन लैमिनेट्स का एक ये भी ड्रॉबैक है, उसका कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है। वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो ऑब्वियसली लैमिनेट्स आर मोर वाटर रेजिस्टेंट, बिकॉज लैमिनेट्स कैन रेजिस्ट वाटर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक वो वाटर रेजिस्ट करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, विनियर्स इज मोर गुड वाटर रेजिस्टेंट। टॉक्सिसिटी की बात करो, टॉक्सिसिटी, विनियर्स नेचुरल मटेरियल इज नॉट टॉक्सिक, नेचुरल मटेरियल कभी टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन कोई भी केमिकल से बनी चीज हो ऑब्वियसली टॉक्सिक होता है, उसका एनवायरनमेंट में, हमारा ह्यूमन लाइफ पे कुछ फर्क पड़ सकता है। रिसाइकल की बात करें, रिसाइकल विनियर्स रिसाइकल नेचुरल वुड है, और लैमिनेट्स कैन नॉट बी रिसाइकल, उसको दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। एनीवे, आई थिंक 2-3 minutes लेफ्ट, so these are a few more images I just shared with you. Veneer used in bed में कैसे यूज हुआ, विनियर यूज इन फॉल्स सीलिंग। इस इमेज में आप देखो कि विनियर को सिर्फ बेड और फर्नीचर पे नहीं,
सीलिंग में भी यूज कर सकते हैं वॉल पैनलिंग के साथ। तो इन दिस इमेज द राइट हैंड साइड इन द अबव सीलिंग यू कैन सी द veneers आर यूज्ड इन सीलिंग आल्सो। इसमें वॉल पार्टीशन जैसे पार्टीशन करना है, रूम को सेपरेशन करना है, सेपरेशन में भी वॉल पार्टीशन में भी हम लोग विनियर को यूज कर सकते हैं। ये आपका सिर्फ वॉल पैनलिंग है। वॉल पैनलिंग में हम लोग विनियर यूज कर सकते हैं। कैसे? वॉल के ऊपर पहले प्लाईबोर्ड लगा दिया, प्लाईबोर्ड के ऊपर ये विनियर पेस्टिंग हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप गलत, जिन लोगों को नहीं मालूम, विनियर ऐसी शीट है जो डायरेक्ट वॉल पे नहीं चिपकता, डायरेक्ट वॉल पे नहीं लगाते, उससे पहले हम लोग वॉल पे प्लाईबोर्ड लगाते हैं। प्लाईबोर्ड 6 mm से लेके 8 mm के होते हैं, उसके ऊपर हम लोग विनियर लगाते हैं। This is one image where veneers is used in flooring also। हाँ, फ्लोरिंग में यूज हो सकता है, बट इट शुड बी अवॉइडेड, यानी हम लोग फ्लोरिंग में अवॉइड करना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली स्क्रैच पड़ेगा आपका, फर्नीचर मूव करने से आपका पैदल यानी वॉकिंग